Now, at 1:52 a.m., 1 hour and 52 minutes after the clock struck midnight, the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, took to social media platform X to alert everyone about getting inside information from the Enforcement Directorate about a raid that was being planned against him. In his tweet, Rahul Gandhi said, and I quote verbatim, "Apparently 2-in-1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned, waiting with open arms, chai and biscuits on me." This is what he tweeted. On expected lines, Rahul Gandhi's prophecy about the ED raids against him triggered a slew of political reactions. While the Congress leaders and MPs are rallying behind Rahul Gandhi's claims, the BJP MPs are calling this shoot and scoot politics, asking Rahul Gandhi to name the Enforcement Directorate insiders who allegedly gave him information about the impending raids against him. Watch how the political fight is unfolding. After his Chakravyuh speech in the parliament, the government is disturbed, and we all know that the government, which has got reduced its number, has this habit of threatening the opposition parties using the CBI, ED and IT. That has been the culture for 10 years. People of India has punished them. They are reduced from 303, they had made them 240. They are a minority government with the support of their allies like JDU and TDP. They are able to cross the majority mark. For again the same habit they are trying to do it. Now the government is a weak government. Modi is a weak prime minister. मैं चुनौती के साथ राहुल गांधी को कहता हूं कि आप बताओ कि कौन व्यक्ति तुम्हें फोन किया, कौन व्यक्ति आपको ये इनसाइडर है। वो शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जिनके परदादा जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़ों को धोखा दिया, जिनकी दादी इंदिरा गांधी ने धोखा दी मंडल कमीशन रिपोर्ट को दरकिनार करके, जिनके पिताजी ने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, जिनकी सरकार ने ठंडे बस्ते में जातीय जनगणना को बंद रखा, आज वो जाति जाति चिल्ला रहे हैं। ये आज की जो अभिमन्यु है, ये चक्रव्यूह के बारे में क्या है, चक्र के बारे में भी नहीं जानते हैं। ये केवल चक्कर के बारे में जानते हैं। ये चक्कर है उनके दिमाग में, फितूर का चक्कर है, और वो फितूर में वो एक अपराध बोधग्रस्त है। और अपराध बोधग्रस्त इसलिए है कि वो एक तरीके से वो गलत बयानी करके और वो अपने को दिखाना चाहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। It's a very well known fact that the Enforcement Directorate is the favorite hatchet agency of this government. It's always unleashed on political opponents. So Mr. Rahul Gandhi himself has faced the harassment of the ED before. So he's perfectly right in saying that he anticipates further harassment because the government finds it very inconvenient with his presence in Parliament as the leader of the opposition. If the BJP thinks that Mr. Rahul Gandhi is erroneous in his statement, then the ED must behave itself in the future and not harass political opponents. Thank you. You heard it here. This was Kartik Chidambaram. देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की खून में, इतिहास में, कामकाज के डीएनए में तानाशाही, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि एक सशक्त नेता विरोधी दल ने चुनाव में 303 से 240 पहुंचाया, उसमें 40 सीटें बेईमानी की निकाल दो तो 200 पहुंचा दी थी। वो सरे पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, और बहुत दिनों बाद हिंदुस्तान ने देखा कि एक सशक्त नेता विरोधी दल सरकार को कटघरे में खड़ा करके
जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, नौजवानों के लिए कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हुआ, महंगाई के लिए कुछ नहीं हुआ, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, उस पर उसने जनता के सामने इनको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। तो खिसियाई तो है भाजपा। जो गवर्नमेंट का है डराने का, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। जो कंट्री के लिए काम है वो करते रहेंगे और करते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले बोल दिया, ना हम डरते हैं ना डरेंगे। और जो बीजेपी करना चाहती है सभी लोग जानते हैं, इनकी पॉलिटिक्स ही डराने वाली है। Now, Rahul Gandhi claims that his recent Chakravyuh speech in the parliament has irked the BJP top brass, and that's why an enforcement directorate raid is being planned against him. On the 29th of July, the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, had attacked Prime Minister Modi during the discussion on Budget 2024. He claimed that Prime Minister Modi trapped the Indian citizens in a modern-day Chakravyuh. Here's what Rahul Gandhi said. कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। So even now the India bloc leaders are rallying behind Rahul Gandhi. They say that his allegations cannot be taken lightly. In fact, they've also used Rahul Gandhi's tweet to accuse the BJP of targeting the opposition leaders by concocting cases against them using the Enforcement Directorate. Now the entire country is today, and certainly Kerala is very, very upset, angry, and wants to know why 300 innocent people have lost their lives and why so many people are going through this suffering. And Rahul Gandhi, in his classic Congress style, wants to distract the topic away from that tragedy, that reasons for the tragedy, to some make-believe imaginary issue that is floating around in his head. So I would say, with all all the humility in my command, this is yet again one more attempt by Rahul Gandhi to distract the people of Wayanad, Kerala and India. The NDA allies, meanwhile, are questioning Rahul Gandhi on the basis of his claims. जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है, और यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, यही केजरीवाल जी के साथ हुआ, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। So this is what some of the opposition leaders have been saying. The NDA allies have, of course, been questioning Rahul Gandhi's version. ईडी छापा मारेगी किसी के हाथ, सर प्लीज ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकते, तो वो जाने, वो बता सकते हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए छोड़ा गया एक शगुफा है। वैसे राहुल गांधी जी स्वयं जानते होंगे
कि उनके पास डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हैं कि नहीं है, लिहाजा उनके बयान को वही बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। सरकार की तरफ से कोई इस तरह का संकेत सार्वजनिक तौर पर आया हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जब तक कोई तथ्यों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और पब्लिक डोमेन में उसको जारी ना करें। अगर उन्होंने ये दिया है तो देखिए, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो जाहिर तौर पर सिस्टम से ही किसी ने बताया होगा। और अभी जब मैं हेमंत जी की रिहाई के वक्त ऑनरेबल हाईकोर्ट का मैंने देखा ऑब्जर्वेशन, जिसमें खुल के कहा गया है कि मतलब उसका भावार्थ है कि वेंडेटा, कुछ भी नहीं था। तो जाहिर तौर पर चुनाव 5 महीने और चुनाव से उनको दूर रखा गया। तो अगर राजनीति में आपने ये तय कर लिया है कि अपने अपोजिशन से आप पॉलिटिकली नहीं लड़ेंगे बल्कि इनको सामने रख करके ईडी, आईटी, सीबीआई, तो लोकतंत्र भी चुनाव भर कहने को नहीं है। लोकतंत्र पर काले धब्बे हैं। उनकी आशंका बिल्कुल सही है। जिस तरह से झारखंड में आपने देखा कि हमारे लोकप्रिय आदिवासी युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बिना किसी सबूत के ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा, और आज हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो एमपी इलेक्शन में पूरा जेल में ही रहे। एक नेता के लिए ये कितना दुखदाई होता है कि इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा जाए, लेकिन जनता सब समझ रही है। So it's pretty time-tested mechanism that they have been using for over, a decade now, ever since they came to power, where they misuse the agencies. Now, people of the country have also started to recognize the fact that the ED, CBI, IT is only focusing on the opposition. What is shameful is how these independent agencies have now become dependent on the agenda of the government, and that is why what the information that he's sharing, he's saying, okay, there is a welcome committee waiting to greet you with chai. The Prime Minister wants chai pe charsha, we will add biscuits to it. So this was after a tweet that came from Rahul Gandhi. He had tweeted that the Enforcement Directorate raids are going to be held. In fact, he said that sources within the Enforcement Directorate had told him that the officials were going to raid him.